कौन डिफाइन करेगा बेटा व्हाट इज मोशन? Sir, when an object changes its position with respect to time and surrounding, it is said to be in motion. Very good. If an object is changing its position with respect to a particular reference point and time, then it's said to be in motion. Okay? Let's say if you are in train. Now, are you in motion? If you are sitting down on a berth in a train, are you in motion? So you'll say with respect to the berth and with respect to the train or with respect to the other passengers sitting on that berth, you are not in motion, है ना? इन सब रेफरेंस पॉइंट के उसमें जो है आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, so you are not in motion. But if you are talking about with respect to a tree outside, now with respect to the tree, train is changing its position, and with train you are also changing your position, so you are in motion. ठीक है? तो motion is always with respect to a particular reference point. ठीक है? With respect to time and with respect to a particular reference point. Please note down this definition. Okay. So depending on the path followed, motion can be broadly categorized in 4 ways. Will you tell me what are those 4 different type of motions we are talking about? Sir, rectilinear motion. Okay. Oscillatory. It's not rectilinear. First one is translational motion, है ना? Translational में rectilinear and curvilinear are 2 different type of motions which are included. Second is oscillatory. Third is Rotatory. rotatory. Fourth is random motion. ठीक है? So broadly motion जो है वो 4 category में divided है. ठीक है? First one is translatory motion, जहां पर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड पर मूव कर रहे हैं. ठीक है? देन सेकंड इज योर रोटेटरी. तो रोटेटरी मोशन में लेट्स से इफ अ पेन इज देयर, ठीक है बेटा, ये एक पेन है, ठीक है. नाउ इफ दिस पेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, पेन की निब भी इसी डायरेक्शन में, पेन की जो बॉटम पार्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में, सब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड पर मूव कर रहे हैं. ठीक है? बट इसी पेन को जो है अगर हमने यहाँ पर जो है टाई अप कर दिया, एक्सिस बना दिया इसका, एंड वी आर मूविंग इट अराउंड. सो ये वाला जो पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट, ये स्लोली मूव कर रहा है, मिडल पार्ट थोड़ा फास्ट, एंड टिप जो है वो सबसे फास्ट मूव कर रही है. ठीक है? तो इनकी स्पीड्स जो है वो डिफरेंट हो रही हैं, जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है. दिस इज रोटेटरी मोशन, जहां पर एक एक्सिस के अलोंग जो है सारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं. ठीक है? थर्ड इज oscillatory. Oscillatory में these are to and fro motion is there. ठीक है? That to and fro motion can be because of the pendulum. ठीक है? And that to and fro motion can be because of the vibration. अगर कोई चीज ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है, to and fro motion is there. So that to and fro motion जहाँ होगा that is an oscillatory motion. And random motion is where no particular path is followed. For example, when people are playing football, so they are not following any particular part, so that's called as random motion. ठीक है? आपका जो translatory motion है, where each and every body part is moving in a particular same direction. ठीक है? All particles are moving in a same path in a same direction. That's called translatory. Translatory 2 categories में divided है. Those 2 categories are rectilinear and curvilinear. ठीक है? अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स, और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स रेक्टिलिनियर. अगर वो पाथ स्ट्रेट नहीं है, देन इट इज अ कर्विलिनियर. विद इन कर्विलिनियर अगर ये एक परफेक्ट कर्व हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ, है ना? विद इन कर्विलिनियर इफ पाथ इज परफेक्ट देन दैट इज अ सर्कुलर पाथ. अगर पाथ परफेक्ट नहीं है तो देन इट बिकम्स नॉन सर्कुलर पाथ. एवरीवन हैज कॉपीड दिस? यस सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसमें हमने जो डिस्कस किया है, ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप के होते हैं. वेयर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स रेक्टिलिनियर, इफ इट्स कर्व्ड लाइन देन इट्स अ कर्विलिनियर मोशन. अब कर्विलिनियर मोशन में इफ इट्स अ परफेक्ट कर्व देन इट बिकम्स सर्कुलर मोशन,
and if it's not a perfect curve, then it becomes a non-circular motion. है ना? This is the diagram, this is the formula we have done in 7th class. That is, distance is speed into time. We'll be using something of it, and few more things will work out. Okay, a simple question from class 7th. Find distance covered by a car in 50 seconds at speed of 72 km per hour. So distance is equals to speed into time. Now you say speed is 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको जो ध्यान रखना है, दैट यूनिट इज सेम. आपका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में हो, टाइम जो है वो सेकंड में हो, तो आपका डिस्टेंस मीटर में आएगा. और स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इन आवर, तो आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में आ जाएगा. है ना? अब यहाँ पर देखेंगे स्पीड और टाइम जो है इनकी यूनिट आपस में मैच नहीं कर रही है, तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना है. या तो आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर स्पीड को मीटर पर सेकंड में. तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? Multiply the 5 by 18. 5 by 18 मीटर पर सेकंड. ठीक है, सो आपका जो स्पीड है दैट इज 4, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड. एंड यू विल से योर डिस्टेंस इज speed into time, so that is 1000 meter or 1 kilometer. सर अगर सेकंड को आर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करता है? ओके, सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है तो बेटा देखो आप क्या कहोगे. हाँ जी, बाय 60 कर दिया तो इतने मिनट्स हो जाएंगे, और बाय 60 और कर दिया तो इतने आवर्स हो जाएंगे. ठीक है, so you will say 50 seconds is 50 by 3600 hours. तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, आपको कन्वर्जन जो है वो पता होना चाहिए. प्लीज राइट डाउन दिस कन्वर्जन. दैट इज, जब भी आप किलोमीटर पर आवर देखेंगे, सो यू विल से 1 किलोमीटर पर आवर is 5 by 18 meter per second. 1 meter per second is 18 by 5 kilometer per hour. ठीक है, डन ऑन दिस बेटा. ओके, यस सर. तो मोशन का चैप्टर है. चलो पहले एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं. Find time taken by car to cover distance of 75 kilometer at speed 75 meter at speed of 90 kilometer per hour. अब आपको टाइम टेकन निकालना है. So you are saying sir distance is speed into time, therefore time is distance upon speed. So distance is 75 meter, speed is 90 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, डिस्टेंस आपका मीटर में है, स्पीड किलोमीटर्स में है ना. तो स्पीड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में. चलो फटाफट कन्वर्ट करो and send answer on chat box. Oh, I have already received few answers here. Good one, starting with Angad and Edvik, Manol. Please send your answer privately, not for everyone. Okay, so speed is 90 kilometer per hour, that is 90 into 5 by 18 meter per second, that is 25 meter per second. Time is 75 upon 25, this is 3 seconds. Okay, ये मोशन की जो चार कैटेगरीज. ऊपर करना, ऊपर कर दो. ओके, हर्षदीप रोल नंबर लिखो बेटा.
सर जूम अपडेट हुआ है क्या? Zoom? I have no idea. Yes. क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सर चैट का ऑप्शन ही नहीं है, इनवाइट का ऑप्शन है चैट की जगह। चैट नहीं है? सर तो नहीं सही। मतलब लिख सर सकते हैं अपडेट हुआ, सर। अच्छा, उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे बहुत सारे, लोगों के अकाउंट हैक हो रहे थे जूम से, तो फिर उसने ओके सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाए। ओके, दैट्स गुड टू हियर। चलो आगे करते हैं। सो देयर आर मोर वेज टू कैटेगराइज मोशन, है ना? खाली हम मोशंस को ट्रांसलेटरी मोशन या रैंडम मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे नहीं कर सकते। देयर आर मोर वेज यू कैन पुट मोशंस एज, है ना? दोज आर, यू कैन से द मोशन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा? सर पहले ऑब्जेक्ट लाइक मतलब कि अगर रेक्टिलिनियर मोशन में ले तो फिर जब वो सेम इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तब वो करते हैं uniform नो, motion। एनीवन एल्स? व्हाट इज सर पीरियोडिक मोशन? हाँ जी बोलो। सर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना, यूनिफॉर्म। वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना बेटा। आई एम आस्किंग फॉर पीरियोडिक मोशन। मैं सर यूनिफॉर्म सॉरी, मोशन, मतलब जब जो ये हर टाइम एक के चीज इंटरवल बाद होता है। सर एक एक मिनट चीज अंगद वेट करो बेटा। हाँ मनोल कंप्लीट करो फिर से। सर जो हर टाइम के इंटरवल के बाद होता है। जो हर टाइम इंटरवल के बाद होता है? नो। यस सर। सेम टाइम मोशन की इंटरवल जो में। सर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद होती है और obviously सर हाँ जी बोलो पार्थ। sir when a object completes one oscillation in the same interval of time. वन ऑसिलेशन, इट हैज टू बी ऑसिलेशन? नो। ओके सर अंगद वापस। Comes back to its original Sir, position. अब आर्यमन। periodic motion is a motion in which a body completes a same type of motion repeatedly repeatedly in the time. इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? इफ a motion is repeated at equal interval of time then it is called periodic motion. Example कौन देगा एग्जांपल? पेंडुलम, रेवोल्यूशन, पेंडुलम। सर वो तो Okay. ऑसिलेटरी मोशन में भी तो है, टू एंड फ्रो। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कैन बी अ पीरियोडिक मोशन, है ना? तो यूजुअली पीरियोडिक मोशन की जब बात करते हैं तो आपका सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, दिस टर्न्स आउट टू बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। अगर एग्जैक्टली सेम मोशन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करेगा देन वी कॉल इट पीरियोडिक मोशन। अगर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो गया या मोशन की डायरेक्शंस कुछ चेंज हो गई देन इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है? ओके सर। So write down the definition. सर एग्जांपल भी लिखना है? Just one or two example you can write. ओके सर। A rocking chair, vibration of a tuning fork. Next is uniform motion. कौन define कर रहा है uniform motion? Except for Angad and Manol. Okay. Anyone else? What is uniform? सर कैन आई? Parth Sharma. Sir, uniform motion is a type of motion Sir, in मैं which बोलूँ body covers the equal amount of distance in equal interval of time. Okay, uniform motion is a motion in which body covers equal distance in equal interval of time
थोड़ा इनकम्प्लीट है। कौन कंप्लीट करेगा इसको? रिपीट मत Sir, करके इसका क्या irrespective चाहिए। of the sir, irrespective of the duration of time. इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, थोड़ा सा और इनकम्प्लीट है। मोशन का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। बेटा वो तो अपने आप ही कांस्टेंट हो गया। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस सर। The same path. किसने बोला सेम पाथ? सेम पाथ किसने बोला था भाई? Sir, मैंने कौन बेटा? नाम बोलो, ऐसे थोड़ा पता चलेगा। Sir, Hinaisha. Inaisha, very good, impressive. Inaisha is saying sir it has to be in the same path or same direction, है ना? अगर equal distance है, equal interval of time है, irrespective of how short interval is, but अगर वो circle में घूम रहा है तो वो uniform motion नहीं है. It has to be in a straight path or a specified direction. अगर वो direction fix नहीं है तो वो uniform motion नहीं है, ठीक है? If you are jogging in a circular direction, circular track with a fixed speed, then you are not in uniform motion because your direction is changing all the time when you are moving in circular path. ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन में सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। प्लीज कॉपी इट डाउन। समझ में नहीं आया सर, डायरेक्शन पर। ओके, देखो बेटा, अगर मैंने एक सर्कल के अराउंड जो है आई एम मूविंग, नाउ इफ आई एम मूविंग एट अ फिक्स स्पीड, ठीक है, आफ्टर 1 second I have covered this distance of 2 meter. Next 1 second I am covering a distance of 2 meter. Next 1 second I am covering a distance of 2 meter. Is this uniform motion? नो सर, सर क्योंकि दीवार चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज। हाँ जी, इसलिए यूनिफॉर्म में स्पेसिफाई डायरेक्शन वर्ड यूज होना जरूरी है। सर अगर स्ट्रेट पाथ में होती तो होता। यस सर। ठीक है, गुड वन हिनाइशा। सर अगर ओवल है तो? नो बेटा, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट। रेक्टिलिनियर मोशन कैन ओनली बी यूनिफॉर्म मोशन, दैट्स इट। सर हाँ जी सर कुछ नहीं। ओके, इसका क्या मीनिंग है भाई जो एडविक ने बोला था? इररिस्पेक्टिव हाउ शॉर्ट इंटरवल टाइम इंटरवल दैट इज। सर इसका मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता कि जो टाइम इंटरवल्स के बीच में कितना कम टाइम है, कितना ज्यादा टाइम है। हाँ जी, वेरी गुड अंशिव। अंशिव कह रहे हैं कि सर अगर मैंने जो है लेट्स से 1 आवर में, मेरे को एक चीज था, 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस की है, नेक्स्ट 1 आवर में मैंने फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया है, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन आई हैव डन 10 किलोमीटर। इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन? यस और नो? चैट बॉक्स पर टाइप करेंगे, इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। फटाफट एवरीवन में कौन कर रहा है? लक्ष्य प्राइवेटली भेजना है। हर्षदीप सेंड मैसेज प्राइवेटली ओनली। सर आपने इंफॉर्मेशन कुछ और दी है? नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मनोल, आपका आंसर क्या होगा? स्पीक आउट मनोल, व्हाट्स योर आंसर? सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज़ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। Okay, very good. I have got first correct answer from Angad. नहीं, first was from Parthuso. ठीक है, Parthuso is saying sir cannot be determined, and same answer was by Angad and Manol. बेटा यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब irrespective of the time interval, अगर आपने यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया तब भी वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे पता ही नहीं है, 1 आवर में तो 10 किलोमीटर है, बट पता चले कि यहाँ पर आधे घंटे में सो रहा था, उसके बाद में उठकर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज एवरीवन कीप योर माइक ऑफ, इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। दक्ष, शौर्य, अंगद, I don't have to repeat on this. Keep your mic off. ठीक है, so irrespective of how short the interval is, it has to cover exactly same distance. अगर 1 सेकेंड में यहाँ पर जो है वो 1 मीटर कवर हो रहा है,
तो अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर होना चाहिए, उससे अगले में भी 1 मीटर होना चाहिए. इट शुड मेंटेन इट्स स्पीड. हाँ जी अमृत बोलो. तो मतलब इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड भी वो इक्वल रहनी चाहिए. क्या चीज? जो स्पीड है वो भी इक्वल रहनी चाहिए ना बॉडी की. यूनिफॉर्म मोशन में at any point, at any given point, the speed should remain same. स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए. ओके सर. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर स्पीड जो है वो मेंटेन होनी चाहिए. तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ऑफ लाइट मूविंग इन वैक्यूम. वैक्यूम में लाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम स्पीड पर मूव करेगी. ठीक है. सर कार मूविंग इन हाईवे. हाँ जी सर गलत था. ओके. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन बोलेगा बताओ. Sir, non-uniform motion is the motion which the body doesn't cover equal distance in equal interval of time. वेरी गुड. ठीक है. ओके अब यहाँ पर जो है before we move ahead we'll be doing two things, distance and displacement and speed and velocity, है ना. इन चीजों के बारे में जानेंगे. then we'll see the new term acceleration and then we'll start our actual chapter, है ना. हमारे चैप्टर में पहला जो पार्ट है वो ये सारी टर्म्स से रिलेटेड है और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे. ओके. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस वर्ड आपने सुना है. ठीक है. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथवे विच अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. अगर इनिशियल पॉइंट ए है आपका और फाइनल पॉइंट बी है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट बी. मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो आप इस पूरे पाथ हाँ पूरे पाथवे की लेंथ मेजर करेंगे. एंड व्हेन आई एम आस्किंग डिस्प्लेसमेंट, displacement is the shortest distance or a straight line distance between initial point and the final point. डाउट है. फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज योर डिस्प्लेसमेंट. हाँ जी बोलो. सर डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी. डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं. अगर देखो मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट ऑन अर्थ सरफेस, है ना, तो जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट लाइन हो. डिस्प्लेसमेंट विल बिकम देन कर्व्ड लाइन. समझो. अगर लंबे रेफरेंस की बात की, मान लो मैंने बात की डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, मैं बॉम्बे से लंदन गया, लंदन से फिर न्यूयॉर्क गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉम्बे से लेकर न्यूयॉर्क तक, है ना. बट स्ट्रेट लाइन लोगे तो वो स्ट्रेट लाइन तो अर्थ के अंदर से घुस जाएगी, है ना. तो वो अर्थ का कर्वेचर फॉलो करते हुए जो स्ट्रेट होगी, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ओके सर. Okay, tell me on this. I went from point A to Lakshaya's house and from Lakshaya's house I came back to point A again. Now if the distance between point A and Lakshya house is, let's say, 2.4 kilometer, first thing is how much is distance covered. Distance covered कितना होगा बेटा? 4.8 kilometer. 4.8 kilometer. Zero displacement. And displacement, hello लक्ष्य, पूछने से पहले नहीं आंसर करना. ठीक है. 4.8 डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट जहां पर मेरी जर्नी एंड हुई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस इज 4.8. ओके रेडी. चैट बॉक्स पे आंसर करेंगे. सर्कुलर पाथ है विद रेडियस 14 मीटर. रेडियस कितना है? 14 मीटर. I went from point A to point B. Find displacement and sorry, A is find distance. Chat box पे आंसर करना है privately. B is find displacement.
मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। Point A to point B on a circular track. Find this distance covered and displacement. Point A to point B. रेहान बेटा दोनों आंसर साथ में देने हैं, ए और बी करके। रघुवंश साथ में आंसर देंगे। ओके लेट्स सी हियर। अमितोष का गलत है, दक्ष गलत। फर्स्ट करेक्ट पास बाय लक्ष्य, नहीं लक्ष्य का भी गलत है। पार्थ सबका गलत है यहाँ पर। ईशान कॉल का भी गलत है। ओके ये कौन है? सिद्धांत शाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली। एंड एडविक का गलत है, मनोल का गलत है, गलत 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 गलत, बाकी सबका गलत है। ठीक है आंसर क्या है? सर मैंने डिस्टेंस के टाइम मैंने 16 डिस्प्लेसमेंट के टाइम 16 ले लिया रेडियस। आई डोंट नो, देख लो एक बार। ठीक है भाई, आधे जनता ने तो या तो यूनिट गलत लिखी है, किसी ने तो किलोमीटर भी लिख दी है, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, या आधी जनता ने यूनिट नहीं लिखी है। प्रॉपरली यूनिट सिद्धांत शाह ने लिखी है। जो रेड लाइन है दैट इज योर डिस्टेंस, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज आपका जो सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में अगर पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंगे सो दैट इज 2 पाई आर, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 14। ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है। बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक क्वार्टर की, सो 1 क्वार्टर के लिए विल मल्टीप्लाई विद 1/4, है ना। और लेंथ, you can say length of a particular arc is theta by 360. In this case it will be 90 by 360, which is 1/4. So this get cancelled, this is 2, this is 4, this 4 get cancelled, and this distance is coming as 22 meter. So पहला आपका solution आ गया, that is distance is 22 meter. Second is displacement. सर एक डाउट है, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ए टू बी। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। बेटा इसको 196 प्लस 196 क्यों लिख रहे हो? इसको आप ऐसे लिखूंगा, लिखो इसको 2 इंटू 14 स्क्वायर। ठीक है, 14 दो बार आ रहा है तो एक 14 बाहर आ जाएगा। आंसर इज 14√2 मीटर। ठीक है, write down the statement, write down one statement. Displacement is always less than equals to distance. पहले कॉपी कर लो, then doubt I'll take. सर हमको जरूरी है क्या सिंपलीफाई करने के लिए रूट 392 को? बेटा सिंपलीफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने सीधा 14 लिया था, अदरवाइज सिंपलीफाई करना चाहिए। ठीक है, बोर्ड में यू लूज हाफ अ मार्क। हाँ जी पूछो सिद्धांत। सर अगर हमें एंगल स्पेसिफाइड नहीं हो दोनों रेडियस के बीच में तो क्या करेंगे? मैंने एंगल स्पेसिफाई किया था या नहीं? सर अगर याद एंगल नहीं। स्पेसिफाई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप स्टार्ट करेंगे assuming that
the angle is 90 degree and then you will start. ठीक है बेटा? Okay. Okay. So we'll write down what are the differences. ये आपका 2 marks का बहुत ही common question आता है. Write any 4 differences between distance and displacement. Between distance and displacement. हाँ जी, पहला डिफरेंस कौन बता रहा है? Sir, बोलो. sir, distance. पहले तो डेफिनेशन वाइज ही ले लेते हैं. दिस इज एक्चुअल लेंथ. Sir, एक मिनट रुक जाओ एडविक. एक्चुअल लेंथ कवर्ड एंड दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between shortest or straight line distance between initial and final position. हाँ जी एडविक बोलो अब. Sir, एडविक. can I? हाँ पार्थ बोलो. Sir, distance. Distance can be. Sir, distance is always positive, and displacement can be negative. Very good. Distance is always positive. Yeah, always positive. Can be positive और नेगेटिव. ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है मींस इट इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन आल्सो. Direction and दिस इज magnitude. वेक्टर. Sir, scalar quantity. Sir, positive, negative, and zero. Sir, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. वेरी गुड. Integer. हाँ जी बोलो. sir, distance is greater or equal to the displacement, and displacement is always less or equal to the distance. वेरी गुड. उसको भी डिफरेंस दे सकते हैं. दिस इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना. ये डायरेक्शन से रिलेटेड है. यू कैन से डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस. हाँ जी. आपका जो फॉर्मूला है बेटा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम and displacement is Velocity into time. velocity Divided by time. हाँ जी. जैसे आपका ये अभी हम आगे करेंगे. स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. आपका जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम है. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है. स्पीड डायरेक्शन से इन्वॉल्व नहीं होती है. वेलोसिटी इज डायरेक्शन. Vector. हाँ जी, वेक्टर क्वांटिटी वो डायरेक्शन से रिलेटेड रहेगा. Sir, एक और है. Sir, बता दो. हाँ जी बोलो. Sir, distance can be curve or straight, but displacement is always straight. बेटा ये इसमें कवर्ड हो गया है ना फर्स्ट वाली उसमें. एक्चुअल लेंथ कवर्ड एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. सर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है ना. हाँ जी. ग्रेटर देन इक्वल टू. इक्वल भी हो सकता है. ठीक है. तो बेटा मैं यहाँ से लेट से मुझे जाना था रोहिणी की तरफ. ठीक है. और मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ. मैं गाड़ी चला रहा हूँ गुड़गांव की तरफ है ना. माय फ्रेंड कॉल्स अप फ्रॉम रोहिणी. he said क्या हुआ अभी तक आया नहीं. मैं कहा नहीं मैं तो कार ड्राइव कर रहा हूँ पहुंचने वाला हूँ. एंड ही इज आस्किंग कि अच्छा कि किस स्पीड पे कार ड्राइव कर रहा है. आई एम सेइंग 100 मीटर पर सेकेंड. नाउ थिंग इज इन केस ऑफ वेलोसिटी अगर उसने मुझसे वेलोसिटी पूछी होती तो क्योंकि मैं तो रोहिणी से अवे ड्राइव कर रहा हूँ तो आई वुड नॉट से माय वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड. आई से माय वेलोसिटी इज -100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अगर आप फाइनल पोजीशन से अवे जा रहे हैं तो यू विल टेक इट वेलोसिटी एज नेगेटिव. इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन कवरिंग द डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस it is going away from that particular
point. ठीक है? As a standard rule, what we take is if a object is moving towards the right, अगर कुछ given नहीं है, तो towards the right will take velocity as positive, and towards the left will take it as negative. ये आपने डिफरेंस नोट कर लिए हैं? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं उसमें हमें ऐसे डायरेक्शन में मेजर मतलब मेंशन करना होता बेटा मेंशन Yes, sir, हो करना गया। चाहिए, है ना? बट हमारे कोर्स में मतलब we are not very conscious about the direction at present. ठीक है? Otherwise displacement is incomplete without mentioning the direction. है सर। डन। ठीक है? अगर हमने यहाँ पर डिस्टेंस की बात की, डिस्टेंस इज 22 मीटर, बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की तो डिस्प्लेसमेंट इज 14√2 मीटर फ्रॉम ए, आप यहीं पर बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है? इसका मतलब है ए से बी वाली डायरेक्शन में 14√2 मीटर मूव किया है। ठीक है सर तो ए टू बी, ऊपर एरो का मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जहां पर आपका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन, एंड मैग्नीट्यूड इज 14√2 मीटर। हाँ जी बोलो। sir does speed of object have any effect on the mass of the object? हाँ जी बेटा, ये आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी है। आइंस्टाइन सेड इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? मास जो है, इफ यू आर मूविंग फास्ट योर मास विल इंक्रीज, इफ यू आर मूविंग मोर फास्ट मास विल इंक्रीज मोर। तो आप जितना फास्ट मूव करेंगे आपका मास प्रोपोर्शनलिटी उतना ज्यादा होगा। लेट्स से आपने वेइंग स्केल पे अपना मास देखा, योर मास इज कमिंग एज 50 kg एंड यू स्टार्टेड जॉगिंग करेंगे, और जॉग करते हुए अगर हमने आपका मास चेक किया, इट विल बी 50.000001 kg. Some increase will be there in the mass, you know, as you are approaching speed of light your mass will approach towards infinity. Sir, on the spot jogging? नहीं, सर वॉक Excuse me, करते sir. वक्त वॉक करते वक्त एंड रनिंग करते वक्त बेटा जो इंक्रीज है। हाँ जी बोलो। सर अगर हम ट्रेन में अपना वेट चेक कराए तो हमारे ट्रेन में ज्यादा होगा वेट? हाँ जी बिल्कुल, ओके बट सर। वो जो ज्यादा वाला पार्ट है वो इतना माइन्यूटली सा ज्यादा होगा कि मतलब आप नॉर्मल मशीन से वो डिफरेंस मेजर ही नहीं कर सकते, है ना? Excuse me, sir. वो जो Sir, ये होता माइन्यूटली पार्ट है दैट विल बी यू नो इन मिलीग्राम में नहीं, माइक्रोग्राम्स में वो माइन्यूटली ज्यादा होगा। सर ये होता क्यों है? सर वो बेटा क्या दिस इज नेचर्स फिनोमेना, ये आपका मास का फॉर्मूला है। ठीक है? सर म्यू मास और mass of an object is mass at zero velocity upon root of 1 minus v square by c square. V is your velocity of लाइट light, c is velocity of light, है ना? This is velocity of light. अगर आप light की velocity से जा रहे हैं, this is particle velocity. अगर आप लाइट की वेलोसिटी से जाएंगे तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, मास अपॉन हाँ, इनफिनिट हो गया। अनडिफाइंड है ना? सर चलो वो कितनी स्पीड है जिसमें दिखना शुरू हो जाए केजी बढ़ रहा है, जैसे 51 हो गया। बेटा उसके लिए you'll have to सोचो ना, लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, है ना? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप लेट्स से अगर आप 1000 मीटर पर सेकेंड से भी जाओगे तब भी एनी चेंज इज देयर। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कर रहे हो आप, दिस इज मास अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1000 बाय 3 लाख। ठीक है? ये कैंसिल हो गया। लेट्स से आप 3000 से जा रहे हो, सो दिस इज m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय 100 का स्क्वायर, so this is m upon root of
1/100 is 0.01, 1 and उसका स्क्वायर तो 0.001, so this is 0.9999, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, so this is m upon 0.99999997। Yes, sir. तो मास तो बढ़ेगा, बट कितना बढ़ रहा है? माइन्यूटली। एंड 3000 मीटर पर सेकेंड इज वे टू मच स्पीड, ठीक है। आपका जो फास्टेस्ट जो जेट वेट है उनकी स्पीड भी इतनी नहीं आती, Okay, sir. है ना। एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं है। हाँ जी बोलो। सर वो जो एलॉन मस्क है उसके ऊपर काम कर रहा है कि हम स्पीड ऑफ लाइट पे जा पाएंगे, उसमें क्या होएगा अगर हम वेट मेजर करेंगे तो? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर वो जो एलॉन मस्क इज वर्किंग ऑन है, मतलब वो वैक्यूम में चलने वाला हाँ। वो, तो उसमें हम अगर वेट मेजर करेंगे तो कितना आएगा न्यूटन्स पे इससे? तो बेटा उसमें इट्स गोइंग एट अ इट्स नॉट लाइक इलोन मस्क जो जिस पे काम कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो कार वगैरह ट्रेवल करेगी। नो नो नो, चेक आउट दैट प्रोजेक्ट अगेन। वो जो ट्यूब है उसमें ही इज क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दैट ट्यूब it will not experience any frictional force। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो फिर उसमें क्या होगा कि आपने जो है एक बार इंजन चालू किया, you have attained a speed of 80 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आप इंजन ऑफ कर दो, वो 80 मीटर पर सेकेंड से ही वो उसमें मूव करता रहेगा विदाउट कंज्यूमिंग द फ्यूल। सर ये तो हाइपरलूप होता है। हाँ, तो उसमें बेसिकली जो है यू आर सेविंग लॉट ऑफ फ्यूल, है ना, एंड यू आर मूविंग एट अ गुड स्पीड। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन सर। Okay, chat box पे answer. Okay, very good, very good. First one was लक्ष्य, simplify कौन करेगा उसे? Moving south, then it moves towards the east, and this is your displacement is there. From A it went to B. This is 20 meter. This is 21 meter. This is C. ठीक है? And your movement है वो towards southeast है, and your displacement is root of 20 square plus 21 square, so that is 29 meter। सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका डिस्टेंस 41 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 29 मीटर। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. कोई कुछ कह रहा था अभी? ओके सर एक बार सर आप डायरेक्शन कैसे एक बार बता दो सर। डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी। ओके, डायरेक्शन बेटा एग्जैक्ट साउथ ईस्ट नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट बोलेंगे तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, जो 45 डिग्री पे बनेगा वो साउथ ईस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो बेसिकली साउथ एंड ईस्ट के बीच में जा रही है, इसलिए हमने साउथ ईस्ट बोल दिया है। नहीं तो अदरवाइज यू विल से डिस्प्लेसमेंट इज AC वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 29 मीटर, ठीक है। अब ये जो वेक्टर वाला पोर्शन है ये आपके 9th में नहीं है ना, वेक्टर इज इन 11th। तो आपके उसमें जो है सिर्फ मेनली डिस्प्लेसमेंट के नाम पर इट्स ऑलवेज आस्किंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डायरेक्शन। सॉल्व दिस, चैट बॉक्स। सर इसके अंदर हमें डायरेक्शन लिखनी है? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। गुड वन पाथ। सिद्धांत, पाई आर कैसे आ गया बेटा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। Sir, I have also. हाँ, क्या चीज? हाँ, बाकी सबका सही आ रहा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आप पॉइंट ए से शुरू किया, आपने यहां से ऐसे गए और आपने टर्मिनेट किया पॉइंट बी पर। सो डिस्प्लेसमेंट ये आपका डिस्टेंस हो गया,
एंड डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैंने डिस्टेंस पढ़ा। ओके, तो अगली बार ध्यान रखना। सॉल्व दिस। सर वो 5 किलोमीटर है। नहीं बेटा, मीटर है वो भी। ओके सर। ठीक है, 5 मीटर कर लो इसको। आपने क्या चेंज किया अभी? फाइव किलोमीटर से 5 मीटर। First correct answer by Angad, followed by Manol. Okay, pay attention here. So he went 14 किलोमीटर नॉर्थ। बेटा अगर मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड ले लूं, सर मेरा देखना, सर मेरा ठीक है। हाँ जी आपका भी सही है, सिद्धांत का गलत है। पार्थूसो का भी गलत है। पे अटेंशन बेटा। सो आई वेंट, मैं पहले नॉर्थ गया हूँ, टर्न राइट। पहले नॉर्थ गई है वो इंसेक्ट नॉर्थ जाने के बाद एक टर्न राइट, वो राइट टर्न कर गई, और उसके बाद इट फ्लू अपवर्ड 2 मीटर, इट फ्लू अपवर्ड 2 मीटर। सो इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी, and distance, straight line distance between initial and final point, this is what is your displacement is. So your displacement is AB, which is equals to diagonal of cuboid। ये जो cuboid है इस cuboid का diagonal के इक्वल है। This is square root of 14 square plus 5 square plus 2 square, root of 225 50 मीटर। ठीक है, समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट? किसके स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है या हो गया है? सर मेरे स्कूल में सर हमारे खत्म स्कूल में होने वाला सर है। मेरे स्कूल में चल होने वाला है सर मेरे चलो, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट नीडल विद लेंथ 2 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स। एक मिनट नीडल है, उस मिनट नीडल का डिस्प्लेसमेंट 20 मिनट्स में कितना होगा अगर मिनट नीडल की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है ना आपका मोर ऑफ मैथ्स क्वेश्चन है रेदर देन फिजिक्स क्वेश्चन। तो ये मिनट की नीडल है, दिस इज 7 सेंटीमीटर, 20 मिनट्स में ये यहाँ तक 15 मिनट्स हुआ है ना, और उसके बाद ये आपका 20 मिनट्स। ठीक है, सो इस उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मींस दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर है। आई एम फर्स्ट इंटरेस्टेड बेटा ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। आप क्या कहेंगे 1 आवर में, है ना, 1 आवर में जो मिनट नीडल है वो 360 डिग्री कवर करती है। 1 आवर में 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 20 मिनट्स में मिनट हैंड विल कवर 360 by 3 which is 120 डिग्री। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्रीन स्ट्रेट लाइन की लेंथ कैसे निकालेंगे हम, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? ये आपका ज्योमेट्री लग रही है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह भी यूज हो सकता है ना? हाँ जी, इसको रहने देते हैं ना, क्योंकि हम पहले हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। रिमाइंड मी, मैथ्स में जब हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे सो विल टेक अप दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। भाई डिफरेंट सफिक्स लगाओ वेलोसिटी के साथ, you get uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity, relative velocity, है ना? Velocities are of different types. First one is uniform velocity. Definition is exactly same as of uniform motion. Uniform motion की तरह ही definition है. If a body covers equal distance in equal interval of time in a specified direction. सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अंदर डिस्टेंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे बेटा मैंने स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोल दिया ना। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं करना चाह रहे हो, देन यू से इफ अ बॉडी कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ओके सर। written on this. यस सर। ये डेफिनेशन नोट कर लो। दिस इज द वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन मोशन चैप्टर। सर एक बार यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन। बेटा जब मैंने पूछा फिर आपने बोला नहीं नहीं सर अभी वेट करो प्लीज। हो गया बेटा? यस सर। एवरेज स्पीड है ना, डेफिनेशन नोट कर लो, विल डिस्कस ऑन दिस। डन सर। ओके देखो एवरेज स्पीड होता क्या है। अगर मैं द्वारका से आई वेंट टू रोहिणी, ठीक है, मेरी जर्नी कैसे होगी बेटा? मैंने मूविंग आउट है ना, कार अगर फ्री रोड पर है तो मे बी आई एम गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। फिर उसके बाद ट्रैफिक लाइट आ गई, आई एम रिड्यूसिंग माई स्पीड, लाइट आ गई, देन आई एम वेटिंग हियर, एट सम टाइम आई एम एट रेस्ट ऑल्सो, एंड देन व्हेन ट्रैफिक इज ओवर देन आई एम गेनिंग स्पीड बट मूविंग स्लोली। यहाँ पर स्पीड गेन हो रही है, यहाँ पर आई एम मूविंग एट 30 किलोमीटर्स पर आवर। जो स्पीड है वो मेरी वेरी करती रहेगी। एग्रीड ऑन दिस?
सो ये जो 20 किलोमीटर की जर्नी है, दिस 20 किलोमीटर जर्नी आई एम डूइंग एट वेरिंग स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? Instantaneous speed. अगर मैंने पूछा एग्जैक्टली इस मोमेंट पर स्पीड क्या थी, ठीक है, और एग्जैक्टली आपका जो है द्वारका से रोहिणी जब गए आप, तो 20 मिनट्स के बाद स्पीड क्या थी आपकी? हो सकता है 20 मिनट्स के बाद मैं रेड लाइट पे खड़ा था, तो मेरी स्पीड क्या थी? 0 किलोमीटर पर आवर, है ना। अंगद कह रहा नहीं सर 20 नहीं, 20 मिनट्स 30 सेकंड पे स्पीड क्या थी? हो सकता है उस टाइम रेड लाइट ओवर हो गई एंड आई जस्ट स्टार्टेड मूविंग एंड माय स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे नहीं सर गलती हो गई, 20 मिनट्स 50 सेकंड पे क्या थी? हो सकता है उस टाइम में माय स्पीड इज 21 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो सारी स्पीड है, ये सारी स्पीड कौन सी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा कि यही द्वारका से रोहिणी का जो डिस्टेंस है, अब आपको लॉकडाउन में कवर करना है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ पर जाने में जो है लग गए, लेट से 1 आवर लग गया आपको, है ना। द्वारका से रोहिणी आप वेरिंग स्पीड पे जा रहे थे, कभी 60 भी है, कभी 0 भी है, कभी 30 भी है। बट नाउ आई एम सेइंग कि आपको जो है कोई रेड लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, द्वारका से रोहिणी, लेकिन पहुंचना भी आपको 1 आवर में ही है, तो आप किस स्पीड पर जाएंगे? यू विल गो एट 20 किलोमीटर पर आवर। एग्रीड ऑन दिस? आप 20 किलोमीटर पर आवर पे जाएंगे तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 1 आवर में कवर करेंगे। दिस इज व्हाट इज 1 आवर इज देयर। एवरेज स्पीड इज दैट स्पीड which if I have maintained uniformly then I would have taken the same time. अगर मैं उस स्पीड पर जाता तो मुझे एग्जैक्टली वही टाइम लगता जितना मुझे अब लगा है, ठीक है। तो दैट स्पीड इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, कि थ्रू आउट द जर्नी में कौन सी स्पीड मुझे मेंटेन करनी चाहिए थी, सो दैट आई वुड हैव टेकन द सेम टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया एवरेज स्पीड होता क्या है? सो लेट्स से मैंने फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर and I covered this distance in 24 hours. How much is my speed? मेरी speed क्या हुई बताओ? My speed is 50. distance upon time. So that is 1200 upon 24. हाँ जी, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 kilometer. 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है क्या आखिर? Average. Average speed. एवरेज स्पीड है। Average दिस इज नॉट द स्पीड आई एवरेज मेंटेन। वेलोसिटी। हाँ नहीं, एवरेज स्पीड बेटा, दिस इज नॉट द स्पीड आई मेंटेन, है ना। दिस इज नॉट द स्पीड विच आई वाज फॉलोइंग इन मोस्ट ऑफ द जर्नी। नो 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 नो, दिस इज द एवरेज स्पीड, की पूरी जर्नी अगर मैंने 50 किलोमीटर पर आवर पे कवर की होती, आई वुड हैव टेकन एग्जैक्टली 24 आवर्स। समझ में आया एवरेज स्पीड? ठीक है। Yes, sir. Average speed is total distance upon total time. Average velocity is total displacement upon total time. Note down कर लो, then we'll do questions. Very good. Shaurya Tiwari is saying, सर ओडोमीटर में जो स्पीड शो होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। सर बट हम इसमें से वो सर जो फ्रिक्शन, सर वो फ्रिक्शन से वो सब्ट्रैक्ट भी करना है ना? नहीं, फ्रिक्शन कहाँ से आ गया यहाँ पर? Sir, odometer में तो distance होती है. I was waiting for someone to say this.
सर आपने स्पीडोमीटर बोला है ओडोमीटर बोला? नहीं, ओडोमीटर लिखा है उसने। ये बेटा ओडोमीटर में डिस्टेंस शो होता है, ठीक है, स्पीडोमीटर में स्पीड शो होती है। ओके नेक्स्ट, पार्थ शर्मा, पार्थ उसो, बेटा माइक ऑफ करो। If average speed of car, if it travels a distance of 25 kilometer in its first 20 minutes and 15 kilometer in next 10 minutes, आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। जर्नी हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी। दिस इज 25 किलोमीटर डिस्टेंस in 20 minutes and this is 15 kilometer distance in 10 minutes. फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का बेटा? टोटल डिस्टेंस है ना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं पहले फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 25 प्लस 15, टोटल टाइम इज, टोटल टाइम देखो मिनट्स में दे रखा है ना, और डिस्टेंस आपका किलोमीटर्स में है। अगर आप मिनट्स में लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 20 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 40/30, 4/3, so this is coming as 1.33, बट यूनिट क्या आ रही है आपकी? यूनिट आ रही है किलोमीटर पर मिनट, है ना। बट ये अजीब सा लग रहा है किलोमीटर पर मिनट, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और टाइम हमारा मिनट में है, तो ऊपर में किलोमीटर आएगा, नीचे में मिनट आ जाएगा। दिस इज किलोमीटर, दिस इज मिनट, बट ये बहुत अजीब सी यूनिट लग रही है ना। या तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था। सो व्हाट विल से, दिस इज 25 plus 15 upon 20 in terms, 20 plus 30 is 30 minutes. 30 minutes in terms of hour is 30/60 hours. ठीक है, so this is 40 by half hours. So 40 kilometer by half hour. So this becomes 80 kilometers per. ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला था। डन सर। ओके, किसी के स्कूल में कुछ अलग तो नहीं चल रहे ना चैप्टर? हमारा सेल हो गया है, मैटर हो गया है ना सर? वही सब चल रहा है। वही सब चल रहा है ना। सो यू आर एंजॉयिंग द सेशन? मैटर नहीं करवाया। हाँ जी सर, हमारा बायो में अभी तक सेल मैटर नहीं खत्म हो गया, करवाया। टिश्यूज करवा दिए। टिश्यू शुरू हो गया है? यस सर, सेल खत्म हो गया। ओके, काफी स्टार्ट फास्ट करवाया मूव कर रहे हैं। ओके, नहीं देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अरे सर आप बताओ। नहीं, ये वाला करो। यस आंसर आंसर आंसर। ओके, 2 स्कूल में, 3 स्कूल में साउंड भी चल रहा है। वेरी गुड, ऑफ टॉपिक है काफी। ओके, आंसर इज बेटा 0। व्हाई 0? क्योंकि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 0 है। वेलोसिटी 0 देगी। आप A to B गए एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर, है ना, ये A to B का ट्रैक है। देन B to A आ रहे हो आप एट 15 किलोमीटर्स पर आवर, बट फाइनल पोजीशन तो आपकी यही है। सो योर एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल टाइम इज, वी आर नॉट कंसर्न, है ना। सर नॉट डिफाइंड 0 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर चाहे 0 आए, आपको यूनिट जरूर लिखनी है, ध्यान रखना बेटा। ओके सर। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मुझे पूछा जाए एवरेज स्पीड, सर वेलोसिटी 0 है तो क्या एवरेज स्पीड लिखेंगे? लेकिन दोबारा बोलो लक्ष्य। सर 0 वेलोसिटी भी यूनिट लिखने की जरूरत होती है?
बेटा यूनिट जरूर लिखनी है ना, वेलोसिटी की यूनिट जो है तो वो आपको जरूर लिखनी है। बोर्ड में आधा नंबर यूनिट का होता है, यूनिट नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा। सर मैंने वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड निकाल दी। ठीक है, एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बेटा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर सर यहाँ पे दो दो स्पीड दे रखी है, उन दोनों का हाँ जी। डिस्टेंस पता ही इशू चल कर गया देते हैं। सर 12.5। नहीं 12.5 नहीं है बेटा, ये गलत है। 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर मैं ए टू बी का डिस्टेंस बेटा मैंने अगर x किलोमीटर लिया है, ए टू बी का मैंने डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो बी टू ए का डिस्टेंस क्या होगा? X x किलोमीटर। x किलोमीटर्स, ठीक है। सो टाइम ए टू बी में मुझे कितना टाइम लगा बताओ? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x अपॉन 10। टाइम फ्रॉम b to a is again distance upon speed, that is x by 15. So average speed is total distance कितना है बताओ? 2x 2d 2x है ना। a to b गए आप और फिर b to a आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है? 2x अपॉन टाइम। टोटल टाइम इज tab प्लस tba। टोटल टाइम इज tab प्लस tba, यही तो टोटल टाइम लगा जर्नी में हमें। सो दिस इज 2x अपॉन x by 10 plus x by 15. So this is 2x upon, आप 30 LCM ले लें, and this is 3x plus 2x upon 30. So this becomes 30 ऊपर चला जाएगा, 60x by 5x. यहाँ पर क्या हो रहा है? x से x कैंसिल हो रहा है। 60 by 5 is 12 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपकी एवरेज है वो 12.5 नहीं है, ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक होती है। एवरेज स्पीड हियर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड जो है वो मीन से थोड़ी सी कम आएगी, है ना। 10 और 15 का मीन जो है 12.5 है, बट एवरेज स्पीड थोड़ी कम आएगी। कम क्यों आ रही है? क्योंकि आपने जब 10 किलोमीटर पर आवर से जर्नी की तो आपको ए से बी तक जाते हुए ज्यादा टाइम लगा। आपने ज्यादा टाइम 10 किलोमीटर से कवर किया है और 15 किलोमीटर पर आवर से जाते हुए आपने कम टाइम लगाया है ना। तो 10 की वेटेज ज्यादा हो गई है, 15 की वेटेज कम है, क्योंकि 10 की स्पीड से आपने ज्यादा टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 15 की स्पीड से कम टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसलिए आपका जो अंगद बेटा आपका डाउट है, ठीक है, आई एम गेटिंग दैट पॉइंट, but when a teacher is speaking in between, you keep a patience, no? Let me finish first, or shall I stop in between and ask you, okay, what is your doubt first, I'll solve that, है ना। तो पेशेंस मेंटेन करो थोड़ी सी। चलो आप पूछो, क्या पूछ रहे बेटा? सर मैं कहते कि क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो दोनों स्पीड्स है उसका एलसीएम निकाल के उसको डिस्टेंस ले लिया। हाँ ये भी कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें जो है मतलब देखो वो उस अप्रोच से आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि स्कूल में टीचर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने निकाला कि ये एवरेज स्पीड ये होगी, है ना, बट हाउ यू विल जस्टिफाई इट कि हर डिस्टेंस पर एवरेज स्पीड वही आएगी। डिस्टेंस 30 की जगह अगर हमने 60 लिया होता या 120 लिया होता, एवरेज स्पीड तो वही आएगी, बट उसको फिर जस्टिफाई कैसे करोगे आप? ठीक है, तो बेटर है आप डिस्टेंस को d मानो। अगर कुछ गिवन नहीं है तो डिस्टेंस को d या x मान के आप करेंगे। ठीक है, ये एवरेज स्पीड वाला हमने सॉल्व किया अभी। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज 0, ध्यान रखना कॉमन मिस्टेक है, हम एवरेज वेलोसिटी पूछा होता है और एवरेज स्पीड निकाल आते हैं। एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये होमवर्क के लिए है, कल डिस्कस करेंगे इसको।